Hello everyone and welcome back to the lecture of chemical thermodynamics. I think it's lecture number 14 और मैंने आपसे कहा था previous lecture में कि the next lecture we have to take the numericals and for that you need to write down all that formula from the first lecture till the 13th lecture. Already जितने भी formulas है इस chapter में हमने पूरे के पूरे फॉर्मूले ले लिए हैं. तो मैंने आपको कहा था कि आपको एक ही जगह पे वो सब फॉर्मूले लिखने हैं. ओके, न्यू सिलेबस के हिसाब से थर्ड लॉ जो है, यू नो दैट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, actually the third law of thermodynamics, it is not the part of the new syllabus. फिर भी देख लेंगे उसको 5 मिनट में और फिर हम शुरू करेंगे आज का सेशन. यस, कैन यू टेल मी क्या है थर्ड लॉ? पता है? एनी आइडिया डू यू हैव? सी, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिगार्डिंग द एंट्रोपी. And the law states that the entropy of perfectly ordered crystalline substance is always zero at absolute zero of temperature. This is the statement of the third law of the thermodynamics. The entropy of the perfectly ordered, डेफिनेशन पता है आपको एंट्रोपी का? Yes. The degree of disorderness or the randomness in the system is called as entropy. लेकिन अगर सोचिए बिल्कुल randomness है ही नहीं, disorder बिल्कुल है ही नहीं, पूरा का पूरा ऑर्डर फॉर्मेट है, ऑर्डर फॉर्म है, तो ऐसे में एंट्रोपी क्या हो जाएगा? Yes, zero. That is nothing but the third law. The entropy of perfectly ordered crystalline substance is zero at absolute zero of temperature. यही है statement of the third law. Now, third law of thermodynamics, it can be used to calculate absolute entropy of any substance at any state. For example, we can calculate, yes, the absolute entropy of any substance. Now it may be present in a solid state or liquid state or in a gaseous state. So in any kind of a state, we can calculate the absolute entropy of any substance by using the third law. Then it is used, the third law जो भी है, it is used to compare the absolute entropy of the different substances, or we can say standard molar entropy. Now ये जो टर्म है standard molar entropy, yes, आपको पता होगा अभी क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन. The temperature is usually, I told you, temperature is nothing but equal to 298 Kelvin. Pressure होगा 1 atmosphere. So ये जो है, this is known as a standard condition. So ऐसे कंडीशन में 1 mole substance की जो भी रहेगी एंट्रोपी, that is known as a standard molar entropy. So this third law, it can be used to compare
standard molar entropies of different substances to compare absolute entropy of different substances. ठीक है, तो क्या होता है, आया समझ में डेफिनेशन का, इसका डेफिनेशन? यस, it is defined as the entropy of 1 mole of a pure substance in its standard state. Usually temperature is 298 Kelvin and the pressure is equal to 1 atmosphere. So in such a condition, you know that whatever the entropy is there, it is known as the standard molar entropy. Third thing, this third law, it is also used to decide the spontaneity of the reaction. ये क्या होता है, ये मैंने बताया है आपको ऑलरेडी. So this is the just short information regarding the third law. अभी ये फिलहाल नए सिलेबस में तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपके बुक में भी दिया नहीं है, तो ये थर्ड लॉ है. ओके, सो लेट्स राइट डाउन दिस आल्सो लेटर ऑन. अभी हमको देखने हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. सो आपको लिखना पड़ेगा यस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. यस, अभी थोड़ा सा आपको टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा. यू नो दैट इन द फर्स्ट और मे बी इन द सेकंड लेक्चर हमने देखे थे कुछ फॉर्मूले. आपको याद होगा W is work done is equal to minus P external into delta V. This is the formula for work done against external pressure. P external, delta V यहाँ पे क्या रहेगा, change in the volume. So this is the first formula. साइन कन्वेंशन के बारे में बात हुई है हमारी. वापस अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो हमारे लेक्चर और बढ़ जाएंगे. तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि प्रीवियस लेक्चर को आप जरा वापस एक बार देख लीजिएगा. सो इन केस ऑफ साइन कन्वेंशन, W is equal to minus P external delta V is the formula to calculate work done. ओके, देन आपको याद रखने का है, जब भी एक्सपेंशन होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. जब भी होगा कॉम्प्रेशन का क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. सो ये है वर्क डन का फॉर्मूला. देन द सेकंड वन, यू नो दैट W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1. This is the formula. स्पेशली जब न्यूमेरिकल्स में आपको दिया कि कैलकुलेट द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ W max. So remember this thing. This is for, yes, for reversible and isothermal. अगर न्यूमेरिकल में दिया है द प्रोसेस इज यस आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, एट दैट टाइम रिमेंबर दिस थिंग, W max का फॉर्मूला आपको यूज करने का है. अभी ये आपने लिखा है दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, यू नो दैट यहाँ पे जो W max है ये है वर्क डन, N is number of moles, R is molar gas constant. You know that the value of R is yes 8.314 joules per Kelvin per mole. T is nothing but absolute temperature जो भी दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा ये हमें लेना पड़ेगा in the unit of Kelvin. Okay, V2 is the final pressure, final volume, and V1 is the initial volume. So this is the formula. Then the third formula is again for the W max. आपको पता है हमने डिराइव किया था उसको. W max is equal to minus 2.303 N into R into T log to the base 10 of P1 upon P2. This is the formula for W max. Yes, P1 upon P2. What is P1 here? Initial pressure. What is P2 here? Final pressure. N is number of moles. R is molar gas constant. And T is again absolute temperature. So आपको देखना ये है न्यूमेरिकल में कि आपको दिया क्या है. प्रेशर अगर दिए तो you can use this formula. In case of volume,
use this formula again. Okay, next formula. Yes, first law किसका? The first law of the thermodynamics का. Yes, delta U is equal to Q plus W. जहां पे ये क्या है डेल्टा U? Change in the internal energy. So डेल्टा U यहां पे क्या आएगा? Yes, change in internal energy. Q होगा heat absorbed by system. W is nothing but work done. लेकिन यह वर्क डन किसका किस पे होगा? ये वापस देखने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे. 13 lectures we have taken till date for this chapter, that is nothing but the thermodynamics. तो प्रीवियस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा एक बार. So this is nothing but the first law, and these are nothing but the symbol and this formula we have to write. Then the next one here, yes, tell me which is the formula? Delta H. इससे पहले ये W का भी फॉर्मूला पता है आप लोगों को. W yes is equal to minus delta N into R into T. सेम फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने डिराइव किया था. So it is nothing but W is equal to minus delta N into R into T. आपको याद होगा यहाँ पे जो डेल्टा N होता है, डेल्टा N is equal to N2 minus N1. क्या होता है यहाँ पे N2? N2 is nothing but the number of moles of gaseous products and minus number of moles of gaseous yes reactant. This is nothing but the formula for delta N. तो W का ये यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है, yes, W is equal to minus delta N into R into T. ओके, देन द नेक्स्ट फॉर्मूला आपको पता होगा, ये R और T वही तो वही रहेगा, और फिर ये जो साइन आएगा माइनस या आएगा या फिर आएगा प्लस. अकॉर्डिंगली वी हैव टू कंसीडर either work is done by the system on the surrounding or by surrounding on the system. So accordingly take that value here. Then the next formula, you know that delta H is equal to delta U plus P delta V. यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था डेल्टा H को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट constant pressure. डेल्टा U को हम लोग क्या कहते हैं? यस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. P is the pressure and delta V is nothing but a change in volume. इसके अलावा डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus delta N into R into T. This one is one more formula. Okay, usually delta N यहाँ पे यही होगा. देखिए this formula we have to remember, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो MCQs आपको आएंगे यूजुअली ये डिपेंड करते हैं इसी फॉर्मूला पे. तो ये भी आपको इसमें नोट डाउन करना पड़ेगा. अभी से काइंडली नोट डाउन ऑल दिस फॉर्मूला. आपने ऑलरेडी नोट डाउन किए होंगे तो अच्छी बात है. यू कैन ऑल्सो forward the video if you require. और अगर नहीं लिखा है तो you can also note down all this important formulae. इसके बाद में the next formula is for the delta H naught, that is nothing but heat of reaction. You know that it's nothing but equal to summation of total enthalpy of products minus summation of
total enthalpies of the reactants. If it's standard, then here also we have to take a standard values जो भी हमें दिया होगा, and this is nothing but the summation of total enthalpies of the products minus summation of enthalpies of the reactants. Then the next formula, you know that आपको पता है यहाँ पे m और n भी ले सकते हैं. m और n क्या होते हैं? They are nothing but the stoichiometric coefficients. Okay, then bond enthalpy. अगर हमें निकालना है बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो भी यहाँ पे डेल्टा एच नॉट क्या आएगा यहाँ पे m इंटू समेशन ऑफ s एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स. ये यहाँ पे रिएक्टेंट बॉन्ड्स की जो रहेगी एंथैल्पी इनकी माइनस n इंटू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट बॉन्ड्स. इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तब आपको और समझ में आएगा, डोंट वरी. ठीक है. देन ये बॉन्ड एंथैल्पी के बाद आपको याद होगा हमने देखा था फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस. डेल्टा एस क्या होता है? इट इज नथिंग बट द एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू व्हाट हियर? Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T. मैंने कहा आपको कि कभी कभी आप मतलब शायद आपकी बुक में Q कैपिटल दिया होगा या फिर स्मॉल, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट द मीनिंग ऑफ Q इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है यहाँ पे? इज Q रिवर्सिबल, इट इज नथिंग बट द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. Heat absorbed by the system in the reversible manner. और जो यहाँ पे T दिया है, क्या होता है यहाँ पे T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा T. आपको याद होगा डेल्टा एस टोटल के लिए हमने और एक फॉर्मूला लिखा था. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. नाउ दिस डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट वी कैन से डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. सो सेम वैल्यू वी कैन राइट डेल्टा एस टोटल, यहाँ पे जो रहेगा ना वही रहेगा डेल्टा एस यूनिवर्स. तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था कि ये सिस्टम का जो दिया है हम यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे, इसको हम बस डेल्टा एस ही लिखेंगे क्योंकि हमें हमेशा सोचना है सिस्टम के पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे मैं ये कर दूंगा डेल्टा एस, यहाँ पे फिर क्या बचा? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. देन डेल्टा एस इज इक्वल टू एंथैल्पीज ऑफ द फाइनल स्टेट. यू कैन टेक हियर S2 माइनस S1 जो होगा आई विल राइट हियर S2 जो कि है ये फाइनल स्टेट का एंट्रोपी, और ये है इनिशियल स्टेट का एंट्रोपी. ओके, सो दिस द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस. सिमिलरली इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस. एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी. ओके, सो अभी यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डेल्टा एस, देखो यहां पे दो है केसेस. अगर समझो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा? द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब भी हीट बाहर जाएगा तो यहां पे क्या होगा? सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, तो Q का वैल्यू हम लोग यहां पे लेंगे माइनस. आपको पता है ना डेल्टा एस फॉर द सिस्टम अगर हमको यहां पे लिखना है तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस Q रिवर्सिबल, या फिर मैं इसको लिखूंगा माइनस डेल्टा एच अपॉन T.
ये मैंने लिखा है सिस्टम के लिए, लेकिन वही जाकर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, देखो मैं बात कर रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, लेकिन जहां कहां पे जा रहा है वो हीट जा रहा है सराउंडिंग में, तो ऐसे केस में डेल्टा एच सराउंडिंग का वैल्यू क्या आएगा, इट्स प्लस डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच मतलब क्या होता है पता है ना आपको, यही होगा यहाँ पे, इट्स अ क्यू, नथिंग बट अ क्यू रिवर्सिबल। तो ये हो गया इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसे में डेल्टा एच ऑफ सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया, तो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, कि वैसे ले दो, लेकिन वही बात हम करेंगे सराउंडिंग की, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो इधर आएगा डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, माइनस क्यों आया समझ में, क्योंकि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब सिस्टम में जो भी हीट आएगा वो कहां से आएगा, फ्रॉम द सराउंडिंग। देन द नेक्स्ट केस, एक्सो हो गया, एंड हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला, यस, व्हिच इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है, G is equal to H minus TS. Okay, write down this formula also. G यहाँ पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, H is enthalpy, T is absolute temperature, S is entropy. And similarly, you know that we can also write the formula here, delta G is equal to delta H minus T delta S. So this is again the formula for the change in the Gibbs energy. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. If you write here standard, then it's nothing but we have to write the symbols like this. इसके अलावा और एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद होगा, और वो जो फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log the base 10 of K। याद है प्रीवियस लेक्चर में हमें डिराइव किया था इस फॉर्मूला को, सो ऑल्सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला of delta G naught. I think all this formula we have written on the board. Okay. इसके अलावा कुछ फॉर्मूला अगर बचे भी तो हम उससे हमने ले लेंगे न्यूमेरिकल्स में। सो काइंडली नोट डाउन ऑल दीज फॉर्मूलाज प्रॉपरली, और अगर लिखा है तो डायरेक्टली आप आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, लिखिए फॉर्मूले आप लोगों ने। अभी देखिए मैंने बोर्ड पे प्रॉब्लम लिखी, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इफ यू सी हियर ऑलरेडी इट इज गिवन दैट कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मतलब यहां पे एक बात तो क्लियर है कि हमको यहां पे W मैक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Calculate the maximum work when 24 gram of oxygen are expanded. देखो यहां पे बोला है expanded, जब भी होगा expansion, I told you the value of W should be negative, क्योंकि अगर expansion होता है तो सिस्टम को अपना जो रहेगा एनर्जी वो खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में W का वैल्यू यहां पे क्या आएगा negative. So when 24 gram of oxygen are expanded isothermally and reversibly, यहां तो दिया है isothermally and reversibly. So this is second clue that पहले तो यहां पे क्लियर लिखा है इन्होंने मैक्सिमम वर्क निकालिए, तो हमेशा ये आपको नहीं देंगे, कभी कभी वो मैक्सिमम वर्क नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे कि वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। लेकिन अगर यहां पे दिया है प्रॉब्लम में कि आइसोथर्मली है और रिवर्सिबली है, तो आपको समझना है W मैक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 1.6 into 10⁵ पास्कल टू 100 किलो पास्कल at 298 Kelvin. So better idea is first of all write down all the given things.
सो आई राइट हियर गिवन, क्या दिया है यहां पे, सो मास दिया है आपको ऑक्सीजन का, सो इट्स अ मास ऑफ ऑक्सीजन और वो है 24 ग्राम्स। देन आगे क्या दिया है, आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन का, मोलर मास ऑफ O2 होता है यस 16 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 32 ग्राम्स। या आपको याद होगा इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसके, ऑक्सीजन के, मास अपॉन मोलर मास। तो ये जो है मास अपॉन मोलर मास, क्या दिया है मास का वैल्यू 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर मास 32, यस 8 3s are 24 and 8 4s are 32. Its value will equal to 0.75. This is the value of number of moles. Then यहाँ पे दिया है आपको प्रेशर P1 का दिया है वैल्यू आपको 1.6 into 10⁵ पास्कल, बट द वैल्यू ऑफ P2 is 100 किलो पास्कल। लेकिन जो किलो पास्कल दिया है इसको हमें करना पड़ेगा पास्कल में, इसके लिए हम उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आपको यहाँ पे बोला है किलो पास्कल, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पास्कल में, इसलिए हमने क्या किया है, तो 100 into 10⁻³ हो जाएगा और ये वैल्यू बनेगा फिर 10⁵ पास्कल, राइट। तो ये यहाँ पे ये है n, एक है P1 फिर है P2, हमें निकालना है W max, मैक्सिमम वर्क, okay, W max. The formula is W max is equal to minus 2.303 n into R into T log to the base 10 of P1 upon P2. This is the required formula that we have to use here. आपको पता है इसमें से क्या क्या दिया है, ये जो वैल्यूज दिए हैं हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में। माइनस 2.303, एन का वैल्यू है 0.75, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, एंड टी इज आल्सो गिवन ओवर हियर, टी इज इक्वल टू 298 केल्विन। सो टेक द वैल्यू ऑफ टी हियर 298 केल्विन, देन log to the base 10 of P1 by P2, क्या है P1 का वैल्यू, yes 1.6 into 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵। देखिए जो P2 का वैल्यू है वो है 10⁵, यहाँ पे ये हो जाएंगे कट, सो द वैल्यू हियर माइनस 2.303 into 0.75 into 8.314 into 298 into log to the base 10 of 1.6। देखिए आपको लॉग बुक में सिखाया है कैसे यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इसका लॉग, इसका पहले लॉग फाइंड कर लेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा फिर सबका हमें लॉग लेके करना पड़ेगा, लॉग का एडिशन। तो यहाँ पे आएगा माइनस 2.303 into 0.75 into 8.314 into 298, and here log of 1.6 characteristic here 0। आपको देखना पड़ेगा 16 का क्या आता है 0 में, yes 16 का 0 में क्या आएगा लॉग, I think the log of 16 into 0 is 2041, ये वैल्यू आ गया है लॉग का। देखिए यहाँ पे लॉग देखने के बाद वापस उसका एंटी लॉग मत लेना, क्योंकि फॉर्मूला में आपको लॉग दिया है इसीलिए। सो नाउ हियर these are the values। नाउ माइनस साइन को आप साइड में ही रखो, log of this प्लस log of this प्लस log of this प्लस log of this एंड then log of this, जो भी आएगा उसका एंटी लॉग आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये पूरा इनका लॉग लेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, यस its value is, I think that just take out here, value is minus 873.4 joules
दिस इज द वैल्यू ऑफ W मैक्स। ठीक है, आइडिया है ना आपको हाउ टू सी द लॉग। इन केस नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका। चलो देखते हैं मेरे पास लॉग है या नहीं, पहले देखना पड़ेगा इसमें है क्या। चलो है, करते कोशिश हम। सो आई विल राइट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आंसर हमारा आना चाहिए, देखते हैं आता है क्या। माइनस साइन है, इसे बाहर रखेंगे हम लोग। लॉग ऑफ 2.303 लॉग 0.75 लॉग 8.314 प्लस लॉग 298 प्लस log 0.2041, then here minus sign. Now what characteristic here 0. अब देखो 23 का 03 में मेरे ख्याल से ये आएगा 3623, चेक करके देख लीजिए आप। देन हियर इसका वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है कांस्टेंट, बार बार देखना पड़ता है इसका लॉग, तो बार बार देखने से कभी कभी हमारे लॉग भी हो जाएंगे लर्न। तो यहाँ पे यस 0.75 का व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, और हियर कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा बार 1। 75 का अगर आप देखोगे 0 में तो मेरे ख्याल से वो वैल्यू आएगा 75 का 0 में, मैं देखता हूं लॉग यहाँ पे, तो 75 का 0 में आ रहा है 8751 प्लस इसका आता है 0.9198। ये भी हमेशा यूज होने वाला होता है, इसीलिए इसका भी लॉग पता है मुझे। इस लॉग इज कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड 83 का देखना पड़ेगा 14 में, तो आएगा 0.9198। सिमिलरली व्हाट कैरेक्टरिस्टिक हियर 2, 29 का देखिए 8 में क्या आता है। 29 का 8 में 4742 प्लस व्हाट कैरेक्टरिस्टिक हियर बार 1। 20 का देखिए क्या आता है 41 में, 20 का देखिए 41 में, सो ये आता है 3096, डिफरेंस ऑफ 1:2, सो 3098 ये आएगा यहां का वैल्यू। चलो हम देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। सो ये 3 + 1 = 4, to carry 3 + 2 = 5, into carry 2 - 1 is 1, 1 + 2 is 3, again -1, yes 3 - 1 यहाँ पे कितने आएंगे 2 आएंगे, सो 0.9322 ये आ रहा है। माइनस साइन को देखिए मैंने बाहर ही रखा है, इसका मुझे देखना पड़ेगा क्या आता है एंटीलॉग, तो मुझे देखना पड़ेगा 0.93 का 22 में, यस मुझे देखना है इसका एंटीलॉग 0.93 का 22 में ये आ रहा है मेरा 8551 और 2 का डिफरेंस आ रहा है 4 का, सो 8555 ऐसे मेरा आंसर आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा जरूर रहा है यहाँ पे आंसर में, सो इट्स नथिंग बट 855 ऐसे आ रहा है। ठीक है, एक बार वापस देता हूं मैं, बिकॉज द आंसर शुड बी मोर करेक्ट। .93 का 22 में
this is 8551 and the difference is 4, so 855 and difference of 4 is again 5 and this thing is 2, so it's 855.5 आ रहा है. ओके, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है. हालांकि देखते हैं हमारे यहाँ पे कुछ है चेंजेस. आप भी देखो, कोशिश करो और मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है फिलहाल. देखिए एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा था पहले 2.9322 एक्चुअली मतलब मेरा. तो एक्चुअली दिस एडिशन इज 2.9412. देखो मैंने वापस यहाँ पे किया है उसको. और अगर आप यहाँ पे वो वैल्यू लेते हैं इसका, वैल्यू इज यस माइनस साइन मैं साइड में रखूंगा. वैल्यू इज 2.9412. इसका अगर आप लोगे एंटी लॉग, देखते क्या आता है. तो मेरे ख्याल से 0.94 का 1 में आना चाहिए 8730 और डिफरेंस ऑफ 2 इज 4, सो 8734 आ रहा है. 8734. नाउ हैव अ लुक एट दिस. दो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है. 2 + 1 इज 3, सो 1 2 3 हमको यहां पे पॉइंट देना होगा. सो वैल्यू इज नाउ एक्यूरेट. माइनस साइन जैसा है वैसा लिखना कह रहा है. सो वैल्यू इज -873.4. ये आ रहा है जून में. तो यहां पे शायद थोड़ा सा एडिशन में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था. एनीवे बट यू नो दिस इज नथिंग बट एडिशन, प्रॉपर एडिशन मैंने यहां पे किया है उसको. ठीक है, नोट डाउन दिस. देखिए इसके बाद दिया है ये दूसरा और एक प्रॉब्लम है हमारे पास. 3 moles of an ideal gas. So 3 moles. So n is equal to 3 moles of ideal gas compressed isothermally and reversibly. एक बात देखिए यहां पे दिया है compress. इसका मतलब वर्डन क्या आना चाहिए हमारा. The value of W should be yes, it's a plus, positive, क्योंकि यहां पे बोला है compress इसीलिए. और एक बात तो तय है यहां पे कि हमें यूज करना पड़ेगा W max का ही फॉर्मूला. सो इट्स given over here. So ये हो रहा है compressed to a volume of 2 liter. तो वॉल्यूम इसका इनिशियल हमें पता नहीं है, V1 पता नहीं, लेकिन इन्होंने बताया है कि V2 जो है इट्स वैल्यू इज 2 liters. द वर्क डन इज सो W max का दिया है वैल्यू और वो वैल्यू है 2.983 किलो जूल. सो 2.983 into 10⁻³ joules. So answer will be 2983 joules. This is the value of W max. टेम्परेचर दिया है 22 डिग्री सेल्सियस, जिसे हमें करना पड़ेगा केल्विन में. तो चलिए हम इसमें ऐड करते हैं 273. 3 + 2 is 5, 7 + 2 is 9 and it's nothing but 295 Kelvin. This is the value of T. पूछा है आपको V1 का वैल्यू निकालना है. So the formula is again the same. W max is equal to -2.303 into N into R into T. Log the base 10 of yes क्या है बताइए यहाँ पे V2 upon V1. W max का जो दिया है वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 2983 minus 2.303. R is नो दैट 8.314 और T का वैल्यू है 295. लॉक द बेस 10 और V2. चलो
हम यहाँ पे लेंगे इसको, ये दिया है आपको V2 दिया है दो, बट वी विल राइट इट लेटर ऑन। तो यहाँ पे दिया है V1, ओके, ठीक है। दैट्स व्हाई you know that log the base 10 of V2 upon V1 is equal to 2983 divided by 2.303 into 8.314 into 295. If you solve this, माइनस साइन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो इधर आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस इसका वैल्यू आना चाहिए। इफ यू सॉल्व दिस, आई थिंक दिस product given down over here, its value is, yes, ये वैल्यू है 2983, नीचे का वैल्यू आना चाहिए 16945, 16945.22, ये आ रहा है इनका प्रोडक्ट। फिर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, इसका वैल्यू है -0.176। आप फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आपका क्या वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन लॉग द बेस 10 ऑफ V2। चलो अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है V2 का पुट कर देंगे। V2 का वैल्यू आपने कह दिया है हमें 2, V1 हमें पता नहीं है, निकालना है। नाउ सी दिस इज द वैल्यू अभी ये आया है, देखो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे ये आया और ये वैल्यू इधर है। इसको सॉल्व करने के बाद लॉग से सॉल्व करना, देखिए करना होगा आपको। ये वैल्यू आ रहा है -0.176। ये जो लॉग है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग। सो हियर एंटी लॉग ऑफ, यस, -0.176। क्या करना पड़ेगा इसको, इसका अगर हमें लेना है एंटीलॉग तो क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो एंटीलॉग देखने के लिए ये जो फॉर्मेट है ये सही नहीं है, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा एंटीलॉग ऑफ, यस, -0.000 -0.176 plus 1 and -1. Know that. Then antilog, yes, क्या आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा, ये का वैल्यू हो जाएगा बार 1, and then from the 1 you have to subtract this, so value will become here 1.000 and 0.176, 4 2 8, check out this one, 824 ऐसे आ रहा है मेरा, ठीक है। देखिए 0.82 का 4 में आपको देखना पड़ेगा क्या आता है एंटीलॉग। 0.82 का 4 में इट्स 0.82 का 4 में 666 आ रहा है, so 666 that is bar 1, so 0.666, this is the answer। ये आ रहा है वैल्यू यहां तक। so you can see log to the base 10 of 2 upon V1 is equal to 0.6668, this is the value, and that's why यहां पे देखिए ये जो लॉग है, ये लॉग में इधर लेकर आया, तो अगर ये लॉग इधर आता है तो हो जाएगा एंटीलॉग, फिर यहां का जो लॉग साइन है हम यहां पे निकाल देंगे। ओके, एज फॉर क्लियर। तो यहां पे ये जो लॉग था, इस लॉग को हमने इस तरफ लाया तो इसका हो गया एंटीलॉग। तो एंटीलॉग है तो इसलिए वहां पे वापस लॉग मत लिखिएगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये वैल्यू आ गया है 2 upon V1 is equal to 0.668। That's why the V1 2 upon V1 is equal to 0.6668, and that's why
V1 is equal to 2 upon 0.6668. If you solve this, yes, 2 ones are 2, and then here on solving this आपका आंसर आना चाहिए, यस, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए इधर, ये मिलेगा आपको 2.999. Solve this properly. See, this 2.9 is nothing but approximately equal to 3. That's why the value of V1 will come, that 3 liters. So remember, the value of V1 is nothing but 3 liters. This is our answer. तो ऐसे ये प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम होते हैं तो आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा बार बार. और देखो, अगर लॉग बुक मेरे पास भी होता तो एक्चुअली फेस टू फेस या फिर क्लास में यहाँ पे बताऊंगा मैं, जब भी लेक्चर हमारे होंगे. डोंट वरी, फिलहाल आप लोग जस्ट ट्राई करो इसको. आपके पास लॉग बुक होगा जरूर, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा. मेथड इज इंपॉर्टेंट. बाकी लॉग तो मैंने सिखाया है आप लोगों को क्लास में. ओके, सो काइंडली नोट डाउन दिस. आज के लिए मेरे ख्याल से हम न्यूमेरिकल्स पूरे लेंगे हम लोग, ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. लेकिन फिलहाल जितने भी 100 न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, मैं चाहूंगा कि आप वो नोट डाउन कर लो. 100 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं. ट्राई कीजिए, इन केस नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा. बट स्टिल आई विल से यू दैट प्लीज ट्राई एट होम. अदरवाइज जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, वी हैव टू टेक अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स. डोंट वरी. तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, सो प्लीज नोट डाउन दिस. एंड फॉर टुडेज लेक्चर आज हम यहाँ पे रुकेंगे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन बाय.